Good morning, all. I would like to welcome you in this lecture of Engineering Graphics and CAD. We are studying the chapter projection of plane. And everybody keep in mind, the second name of our plane is nothing but the lamina. प्लेन को हम लैमिना इस नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं. From that particular word, the noun lamination is coming into existence. Lamina means one kind of the layer, okay? And the layer is also known as a plane. तो प्लेन को हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? लैमिना इस नाम से भी जानते हैं. तो एग्जाम में अगर आपके पास आपने कोई लैमिना ये वर्ड देखा तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि लैमिना मीन्स प्लेन. Okay, that is the first point. Second point is in plane also there is a oblique plane. जो प्लेन दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंक्लाइंड होता है उसे हम ऑब्लिक प्लेन कहते हैं. और ऑब्लिक लाइन तो हमने लाइन चैप्टर में पढ़ा ही है कि जो लाइन एचपी और वीपी दोनों को इंक्लाइंड होती है उसे हम कहते हैं ऑब्लिक लाइन. एंड थीटा प्लस फाई इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री इन द ऑब्लिक लाइन. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द प्लेन. अब लाइन के बारे में हमने पढ़ा है, तो लाइन के बारे में हमने ये बात पढ़ी है कि लाइन कैन इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस, बट लाइन कैन बी पैरेलल टू वन ऑफ द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन. यानी कि हमने वो लाइन भी देखे हैं जो एचपी को पैरेलल है लेकिन वीपी को परपेंडिकुलर है, वीपी को पैरेलल है लेकिन एचपी को परपेंडिकुलर है. लेकिन हमने एक भी लाइन ऐसी नहीं देखी है जो एचपी और वीपी दोनों को परपेंडिकुलर है. हमने एक भी लाइन ऐसी नहीं देखी है जो एचपी और वीपी दोनों को परपेंडिकुलर है. लाइन एक तो एचपी को परपेंडिकुलर होगी या वीपी को परपेंडिकुलर होगी, लेकिन दोनों जगह लाइन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती. Single time, at a single time, simultaneously, it cannot be perpendicular to both the axes. But in case of plane, you can see that plane can be perpendicular to both the planes. Now, consider that this is my hand, palm of my hand is one of the plane. ये एक plane है, ये plane surface है, okay? और अगर plane surface आपने ऐसे रख दिया तो देखिए कि यहां मेरा HP है, तो एचपी को भी ये प्लेन परपेंडिकुलर है, और यहां मेरा वीपी है, वीपी को भी मेरा जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है. यानी कि आपका प्लेन एचपी और वीपी दोनों को परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन आपका प्लेन एचपी और वीपी दोनों को साइमल्टेनियसली पैरेलल नहीं हो सकता है. दैट इज द conceptual thing. Okay, so you need to take the note about it. Write down note. Point number 1, the plane is known by the name of the plane is known by the name of lamina, Lamina, lamina. Also the plane, second point, the plane
which is inclined to both HP and VP, both HP and VP is known as oblique plane. Is known as oblique plane. Is known as oblique plane. Third point. A line cannot be perpendicular to both HP and VP. To both HP and VP. But a plane can be perpendicular to both HP and VP. In such a case, front view and top view. In such a case, front view and top view of the plane, front view and top view of the plane will be a vertical line, and its true shape will be observed in profile view, or side view, Next is a line. Next note, point number 4. A line can be parallel to both HP and VP. To both
HP and VP, but 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 a plane a plane a plane cannot be cannot be cannot be parallel to both HP and VP, to both HP and VP simultaneously. Have you written it? Have you written it? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Yesterday, means on Saturday, we have seen the problem in which your plane was perpendicular to VP and inclined to HP. Today we are going to see the two-stage problem where your plane is perpendicular to HP and inclined to VP. So case number 2, write down plane perpendicular to HP and inclined to VP. Perpendicular to HP and inclined to VP. Perpendicular to HP and inclined to VP. And write down the problem. An equilateral triangle of side 50 mm of side 50 mm equilateral triangle of side 50 mm has its base in VP. Has its base in VP. Has its base in VP. The triangular plane is perpendicular to HP and inclined to VP by 50 degree. By 50 degree. Complete the projection of plane. Complete the projection of the plane. Complete the projection of plane. Okay. Now, first of all, we will write the given things. What is the given in this particular problem? The equilateral triangle has
इट्स साइड 50 mm, यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरा, उसकी साइड कितनी है? 50 mm है। इट्स अ बेस इन अ वीपी। अगर ट्रायंगल आपने देखा तो सपोज ये आपका ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं बेस, जिसपे आपका ट्रायंगल स्ट्रक्चर्ड हुआ है, खड़ा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? बेस। बेस पे आपका सारा जो ट्रायंगल है वो स्ट्रक्चर्ड हुआ है, त्याला आपण मराठीमध्ये पाया असं म्हणतो, त्रिकोणाचा पाया. इट मीन्स इट्स बेस, एंड दिस बेस इज इन वीपी। तो मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताई थी। व्हाट इज आवर मेथोडोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट सॉरी first of all you will have to understand that कि ये प्रॉब्लम मुझे कहां से स्टार्ट करना है। मैंने बताया था कि अगर आपका प्लेन एचपी में है तो प्रॉब्लम आपको एक्स वाई लाइन के नीचे स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर आपका प्लेन वीपी में है तो आपको प्रॉब्लम अबव एक्स वाई लाइन स्टार्ट करना पड़ेगा। नाउ दे हैव टोल्ड दैट कि इट्स बेस इज इन वीपी, उसका जो बेस है वो वीपी में रखा हुआ है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बेस वीपी में रखा हुआ है यानी पूरा प्लेन वीपी में रखा हुआ है, और अगर प्लेन वीपी में रखा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम कहां स्टार्ट करना पड़ेगा? अबव एक्स वाई लाइन और बिलो एक्स वाई लाइन? above एब्सोल्युटली करेक्ट, अबव एक्स वाई लाइन। अगर वीपी में रखा है तो अबव एक्स वाई लाइन। इफ योर प्लेन is in VP, then you will have to start above XY line, यानी कि फ्रंट व्यू में हमें स्टार्ट करना है। ओके, नाउ मैंने सेकंड टैक्ट बताया था कि आपका जो पार्ट वीपी में रखा हुआ है वो पार्ट आपको XY लाइन को परपेंडिकुलर करवा लेना पड़ेगा, यानी कि आपके ट्रायंगुलर प्लेन का कौन सा पार्ट वीपी में रखा हुआ है? आप बेस रखा हुआ है, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका जो बेस है वो बेस आपको यहां XY लाइन को परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या करता हूं, एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करता हूं, ओके। और इस प्रोजेक्टर पे मैं क्या करूंगा, 50 mm की एक लाइन मार्क करूंगा। I'll name this triangle as A dash, B dash, and this particular dimension is 50 mm. This dimension is 50 mm. तो हमें यहां इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 50 mm distance in compass, and what I will do, I will mark two curves by putting the needle or the pointer of my compass on A and after that on B.
तो पहले ए पे रख के ये 50 mm लेके मैं क्या करूंगा, यहां एक आर्क मार्क करूंगा ए पे रख के। फिर क्या करूंगा, आई विल कीप इट ऑन बी एंड देन आई विल मार्क अनदर कर्व एंड आई विल गेट वन पॉइंट ओवर हियर। याद रखिए, जो भी मैंने ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया है वो सारा फेंट आएगा, यानी कि फाइनल डायग्राम में ये सब फेंट होगा और सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी विल बी डार्क। तो मैं क्या करूंगा, बी से ये पॉइंट ज्वाइन करूंगा और वहां से ये ए पॉइंट ज्वाइन कर लूंगा। सो हियर माय इक्विलैटरल ट्रायंगल is observed, true shape, original dimension of original dimension, it is observed over here. This point is nothing but C dash. तो ये हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। प्रॉब्लम, उन्होंने प्लेन वीपी में रखा है इसलिए वीपी में स्टार्ट कर दिया, और जो पार्ट वीपी में है वो पार्ट मैंने परपेंडिकुलर कर लिया एक्स वाई लाइन को। नाउ आई नीड टू ड्रॉ इट्स अ टॉप व्यू। ये फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू में ट्रायंगल आ गया, टॉप व्यू में मुझे ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक प्रोजेक्टर लूंगा और टॉप व्यू आएगा ऊपर से। अगर इसको आपने देखा तो एक लाइन आएगी, ओके। तो टॉप व्यू में हमें लाइन दिखती है, तो आई विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ओवर हियर ऑन एक्स वाई लाइन। और एक्स वाई लाइन का ये जो पार्ट है, ये पार्ट मैं क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा, बिकॉज इट्स टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू मस्ट बी डार्क। एंड इन वीपी है इसलिए टॉप व्यू एक्स वाई लाइन पे आएगा, ओके। सो हियर द नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ए एंड बी, and name of this point is point C. हो गया। अब उन्होंने क्या दिया है, इट इज इंक्लाइंड टू वीपी बाय 50 डिग्री। उन्होंने क्या कहा है कि वीपी को ये प्लेन 50 डिग्री इंक्लाइंड है। अब मुझे बताइए कि वीपी का इंक्लिनेशन यानी कि एंगल फाई, तो ये जो एंगल फाई है वो अबव एक्स वाई लाइन आता है या बिलो एक्स वाई लाइन आता है? फाई एंगल कहां आता है? बिलो बिलो एक्स वाई लाइन आता है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री ओवर हियर। मैं यहां क्या करूंगा, एक 50 डिग्री की लाइन नीचे के डायरेक्शन में ड्रॉ कर दूंगा इन दिस वे, ओके। तो ए बी पॉइंट जो है वो एक्स वाई लाइन पे ही है, तो मैं उसे एक्स वाई लाइन पे ही रखूंगा। और ए बी टू सी ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस मैं क्या करूंगा, कंपास में लेके यहां मार्क कर दूंगा, सी पॉइंट यहां मार्क कर दूंगा। एंड आई विल मेक दैट मच पार्ट डार्क, यानी कि मैंने प्लेन क्या कर दिया, अब इंक्लाइंड कर दिया। सो ए बी टू सी, this angle is of 50 degree. This point is
AB point, and this point is nothing but C point. Now I'll take its projection of AB point and C point in upward direction. And I will transfer its locus, point A, point B, and point C in this direction. Projector of AB and C and locus of AB and C. Now यहां आपका A का प्रोजेक्टर है और A का लोकस है, मीन्स दिस विल बी योर पॉइंट A डैश. यहां आपका B का प्रोजेक्टर है और B का लोकस है, सो दैट इज योर पॉइंट B. यहां आपका C का प्रोजेक्टर है और C का लोकस है, दैट इज आवर पॉइंट C. तो सॉरी यहां आपका पॉइंट आएगा B डैश और यहां आएगा C डैश. तो हियर योर पॉइंट इज B डैश and here your point is C डैश. तो आपको क्या करना है, अब यहां आपको फ्रंट व्यू बना देना है डार्क. सो मैं A से B का पॉइंट जोड़ूंगा, A से C का पॉइंट जोड़ूंगा और यहां B से C का पॉइंट जोड़ दूंगा. ओके, और ये हो गया मेरा प्रोजेक्शन कंप्लीट. और आपने देखा होगा कि फाइनल व्यू में आपको रिड्यूस्ड ट्रायंगल मिलेगा, यानी ट्रायंगल कैसे दिखेगा, एपरेंट व्यू दिखेगा उसका. ओके, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाइट ऑफ योर ओरिजिनल ट्रायंगल, दिस हाइट, एंड व्हाट इज योर हाइट ऑफ द रिड्यूस्ड ट्रायंगल. ओरिजिनल ट्रायंगल की हाइट कितनी आती है, स्केल लगानी है आपको बस. What is the height of original triangle? ये हाइट कितनी आती है, दिस हाइट 40 आती है. ओके, 40 आनी चाहिए ना. 60 यानी 36, 360. 43. Okay, and what is, yes, and what is your height of this reduced triangle or apparent triangle? 27. 32. 27. 28. 20. Yeah. 28. Yes, जिनकी ज्यादा वगैरह आए होंगी, एक बार आप प्रोजेक्टर और ये इंक्लिनेशन चेक करो whether it is 50 or not. ओके, तो पहला जो प्रॉब्लम हमने सैटरडे को सॉल्व किया था, वहां ऑब्जेक्ट एचपी में रखा था और यहां हमने ऑब्जेक्ट वीपी में रखा है. और आपको समझ गया होगा कि देयर इज नो एनी बिग डिफरेंस. सिर्फ प्रॉब्लम ऊपर स्टार्ट करना है या नीचे स्टार्ट करना है, ये जब आप डिसाइड करोगे तो आपकी पूरी की पूरी सारी अगली मेथोडोलॉजी उससे डिसाइड हो जाएगी. अगर प्रॉब्लम आपने ऊपर सॉल्व किया तो आपका टॉप व्यू XY लाइन पे आएगा, इंक्लिनेशन नीचे आएगा और फाइनल व्यू ऊपर आएगा. यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो इस नंबर से आता है. इट इज इन दिस पर्टिकुलर वे. ओके, यानी कि पहले आपको
वीपी में, और हम एक्स वाई लाइन यहां ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। पहले आपको पहला व्यू जो है आपका वो यहां आएगा, दूसरा व्यू जो है वो आपका यहां आएगा, तीसरा व्यू यानी तीसरा जो एंगल आपको ड्रॉ करना है वो यहां आएगा, और चौथा और फाइनल व्यू आपका 2 स्टेज प्रॉब्लम में यहां आएगा। 1 2 3 4, पहला स्टेप यहां, दूसरा स्टेप एक्स वाई लाइन पे, तीसरा स्टेप यहां, चौथा स्टेप ऊपर। और अगर आपने ये रिवर्स किया, यानी कि अगर आपने प्रॉब्लम नीचे स्टार्ट कर दिया, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से आएगा। पहला व्यू नीचे आएगा, दूसरा स्टेज जो है वो एक्स वाई लाइन पे आएगा, तीसरा इंक्लिनेशन एचपी पे आएगा, और चौथा और फाइनल व्यू नीचे आएगा इन 2 स्टेज प्रॉब्लम। ओके, फर्दर वी आर गोइंग टू सी द 3 स्टेज प्रॉब्लम आल्सो। हम फ्यूचर में 3 स्टेज प्रॉब्लम भी वहां देखने वाले हैं। ओके, नाउ टेक वन अनदर प्रॉब्लम। Take one another problem. A set square of 30, 60 degree, a set square of 30, 60 degree has its longer edge, of 70 mm in HP. The plane is perpendicular to VP and inclined to HP by 30 degree. Complete its projection. Completes its projection. Now 30-60 degree set square longer edge in HP. तो आपका ऑब्जेक्ट एचपी में रखा है, एचपी में रखा है, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर स्टार्ट करना है या नीचे स्टार्ट करना है? नीचे स्टार्ट करना है। और लॉन्गर एज 70 mm की है, सेट स्क्वायर की लॉन्गर एज 70 mm की है। अब सेट स्क्वायर एक कैसा होता है, ये देखिए ऐसा होता है।
ये 30-60 का सेट स्क्वायर है। ओके, ये एंगल शायद 30 होगा या ये एंगल 60 होगा, या आप सेट स्क्वायर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ये जो एंगल है ऊपर का वो 30 होगा और ये एंगल नीचे का 60 होगा। तो उन्होंने ये बताया नहीं है 30 का एंगल ऊपर लेना है या 60 लेना है, तो आपको फ्रीडम है कि आप वो एंगल कहां भी ले सकते हो। ओके, तो लॉन्गर एज यानी उसका हाइपोटेनियस, ओके, उसका कर्ण जो होता है, बिकॉज सेट स्क्वायर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये सेट स्क्वायर है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसकी लॉन्गर एज है यानी इसका हाइपोटेनियस है, उसका कर्ण है। ओके, तो ये हमें कहां ड्रॉ करनी है, तो XY लाइन के नीचे ड्रॉ करनी है। सो what I will do, I will first of all draw a faint line in this way below XY line, and on that line I will draw a line of length 70 mm. ये 70 mm की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये हो गई मेरी लॉन्गर एज जो HP में है, तो HP को मैंने परपेंडिकुलर कर लिया और XY लाइन के नीचे उसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इसका डायमेंशन है 70 mm। I'll name it A, ये हो गया मेरा B, नाउ ये 30-60 mm का है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये जो A लाइन है वहां से मैं 60 डिग्री की एक लाइन मार्क करूंगा। व्हाट आई विल डू, आई विल मार्क a line of 60 degree in this direction, faint line। आपको A से बाहर की तरफ 60 mm मेजर कर 60 डिग्री मेजर करना है। ओके, so this angle must be 60 degree। and then you need to draw a 30 degree inclination from this side। ये जो एंगल है आपका ये आना चाहिए 30 डिग्री। और जहां ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते हैं वो होगा आपका एंड पॉइंट तीसरा C। तो आपको क्या करना है, इतना जो पार्ट है वो डार्क करके लेना है। ओके, तो ये मेरा सेट स्क्वायर कंप्लीट हो गया 30-60 और ये 90 डिग्री का। ओके, देन you need to take the projector in upward direction।
सी का प्रोजेक्टर जो है वो आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि यहां XY लाइन पे। और यहां मैं क्या कर दूंगा, ये मेरा फ्रंट व्यू जो है वो कर दूंगा डार्क। ओके, तो यहां मैं लिख दूंगा A डैश P डैश, और ये जो पॉइंट है ये मेरा पॉइंट होगा C डैश। फर्स्ट व्यू कंप्लीट होगा, ऊपर फ्रंट व्यू में आ गई लाइन, टॉप व्यू में आ गया ट्रू शेप। ओके, ट्रू शेप यानी ओरिजिनल शेप। Now they have provided that the plane is perpendicular to VP and inclined to HP by how many degrees? 30 degree. 30 degree. Inclined to HP by 30 degrees. HP को कितने डिग्री में इंक्लाइंड है? 30 डिग्री में इंक्लाइंड है. So what I'll do, I'll mark a point and I'll draw an inclination of 30 degree in this way. This inclination must be of 30 degree. और यहां मैं पॉइंट को नाम दे दूंगा A डैश B डैश, और A डैश B डैश और C का जितना डिस्टेंस है उतना कंपास में लेके मैं यहां मार्क कर दूंगा. ओके, you complete it up to this particular point. Then we will have to make this much part dark, A dash B dash to C dash. Length should be same, only the inclination must be there, and this inclination should be of 30 degree. Okay, now I'll draw a projector through this A dash B dash and C dash D dash, and then I'll take
the locus from point A, point C, and point B. And I'll set the points. Here my point A will come. Here I have set the B, and this point is point C. तो A से B मैंने ड्रॉ कर दिया, B to C मैंने ड्रॉ कर दिया, और C से मैंने A ड्रॉ कर दिया, और ये हो गया मेरा प्रोजेक्शन कंप्लीट। अब आप देखिए, आप चेक कीजिए आपके डायग्राम में, ये जो हाइट है ट्रायंगल की, ये ओरिजिनल हाइट और ये दूसरे डायग्राम में की हाइट, इसमें डिफरेंस होगा 100%। Have you checked it? What is the original height of the true shape 30, 60, 90 degree set square? $30.31, sir. 30.31. 31. 30.3. How you can measure 31? So that 31. हम mm को 30th. what is the height of true shape? 30. Absolutely 30. correct. Yes. And what is the height of the inclined shape? 26. 26. 26, 25. Means apparent length is less than the true length. Yes. 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 And Yes. the same statement we have studied in the line also. लाइन में भी ट्रू लेंथ से एपरेंट लेंथ कभी भी कम ही थी। ओके, तो एपरेंट लेंथ मीन्स रिड्यूस्ड लेंथ। दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ आई वांट टू गिव यू अ होमवर्क रिगार्डिंग विद दिस पर्टिकुलर सेट स्क्वायर। यहां आपने ट्रू शेप में ऊपर 60 का एंगल लिया है, नीचे 30 का एंगल लिया है। अब आपको क्या करना है, सेम प्रॉब्लम ड्रॉ करना है, लेकिन वहां जो ट्रायंगल है वहां 30 का एंगल यहां बनाना है, और सॉरी 60 का एंगल आपको नीचे बनाना है ऐसे, और 30 का एंगल आपको ऐसे बनाना है। यानी कि आपका जो सी पॉइंट होगा वो सी पॉइंट कहां आएगा, नीचे आएगा, यहां आएगा। ओके, और फिर से ये प्रॉब्लम आपको रीड्रॉ करना है। ओके, सो दैट इज योर होमवर्क। सेम प्रॉब्लम, ओनली 30 का 60 और 60 का 30, ये जो हमने एंगल पहले यहां ड्रॉ किए हैं वो उसे एक्सचेंज करने हैं। 60 नीचे निकालना है और 30 का एंगल ऊपर निकालना है। This length must be same, 70 mm only. Inclination is also same, 30 mm, 30 degree only. Okay, is it clear? आंसर सेम आएगा ना? हाँ, आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। There will not be any difference in the answer. Okay, so just a minute.